ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜਮੇਰ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾइब्रेरी ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਬੰਦੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ 5ਵਾਂ ਸੀ ਬਈ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਉਸਨੇ ਹੀ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਸ, ਅੱਖਾਂ, ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਿੱਚ RPSC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ, ਰਾਠੀ ਸਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ ਬਈ ਸਾਡੇ, RPSC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰਫ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਭਾਵ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਸਰਲਤਾ ਸੀ, ਸਹਿਜਤਾ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਨੀਵੀਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਨੀਵੀਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਬਈ, RPSC ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਸਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਸੀਗਾ। RPSC ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਾ ਸੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਈ, ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜੀ ਸੀ। ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ, ਸਹਿਜਤਾ ਸੀ, ਸਰਲਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ RPSC ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ
सरकारी सेकेंडरी स्कूल सरदारगढ़। फिर उसने पूछा 12वीं कितों की? ते मैं क्या सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरतगढ़। अगला सवाल सी MA कितों की? तब मैं क्या बीकानेर यूनिवर्सिटी। कहना बीकानेर यूनिवर्सिटी का नाम? ते मैं क्या महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर। वो कहते ठीक है। यानी ये शुरुआत सी मनु होर सहज करने ਲਈ ਭੁੱਲਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ RPSC ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਕਚਰਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਮੈਂ 2008 ਸੀ। 2011 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਿਆ ਔਰ 2016 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਿਆ। RPSC ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2022 ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰ एक मुस्कुराहट जी सारे कमरे च फैल गई। मैं भी बहुत खुश सी और मैं पूर्ण तौर पर सहज हो चुकिया सी। ये RPSC मैंबर की पॉलिसी ही सी। तो कोई भी जिहड़ा इंटरव्यू देने वाला मुंडा आंदा सीगा उसनूं हल्लाशेरी दिंदा सीगा ते अजी ही हल्लाशेरी उसने मैनूं दित्ती। इस नाल मैं काफी मेरा हौसला वधिया। फिर उसने मैनूं सवाल किया जिहड़ा अक्सर किया जाता है कि विषय उत्ते तुहाडी की पकड़ है, किन्ना पढ़ के आए हो? तो मेरा जिहड़ा जवाब सीगा, मैं क्या विषय है वो बहुत विशाल है, जिन्ना पढ़िए उन्ना थोड़ा है। मैं समझदा हाँ कि मेरी गुरमत काव्य दे उत्ते काफी पकड़ है, मेरी काफी रुचि है। तो मैं उस गुरमत काव्य की अगर गल करा उस लिए मेरा सारा जीवन ही है जिहड़ा वो थोड़ा रह जाएगा। इन्ना मैं कह के चुप हो गया। विषय नूं मैं उत्ते रखिया और मैं अपने आप नूं थल्ले। और मैं एक मैसेज भी छड़ता कि गुरमत काव्य ते मेरी पकड़ है। और नाले आ भी दसिया मैं पूरा जीवन अगर मैं गुरमत काव्य पढ़ता रहा तो भी मैं पूरा गुरमत काव्य ते पकड़ नहीं पा सकता। ये मैसेज जो मैं देना चाहता सीगा भाई, ताकि मेरा जिस चीज उत्ते मेरा होल्ड है उस उत्तों प्रश्न आन। फिर उन्होंने की किया कि जिहड़ा इधर साइड ते प्रोफैसर बैठे हुए सी उन्होंने फिर गुरमत काव्य तो प्रश्न शुरू किया, सीधा नहीं तुलनात्मक रूप च। जिहड़ा पहला प्रश्न सी वो आ सीगा कि लोक धारा ते गुरमत के अंदर की समानता है। ते मैं क्या गुरु साहबा ने लोक धारा दे जिन्ने भी रूप है वो सारे दे सारे बाणी दे विच वरतों की है। और उन्हां विचों मुख ने 12 मां, पट्टी, घोड़ियां, राणियां। मैं ये 4-5 दसे और मैं चुप कर गया। फिर वो कहंदा होर दसो। ते फिर मैं वणजारा, तिथि बस 2 ही दसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता सी कि भाई मैं ऐसा कुछ बोल देवां कि मैं उस विच फस जावां। फिर वो कहंदा ठीक है। फिर उसने मैनूं 12 मां बारे पूछया, 12 मां गुरु नानक देव जी वाला इहदे बारे दसो। तो मैं फिर जवाब दिता। मैं क्या जिहड़ा ये 12 मां है इस विच वैसे लोकधारा जिहड़ा काव्य रूप है उस विच 12 मां 12 महीनों तो संबंधित होता है। और स्त्री जो हर महीने वियोग झेलती है, बिरहा उसका दसिया और फिर अखीर च मिलाप। इसी तरह गुरु साहब ने जो 12 मां लिखिया है
उस विच जिहड़ी इस्तरी है वो आत्मा रूपी इस्तरी है, और इस विच जो इस्तरी का जिहड़ा स्थूल रूप है उसनूं बेदखल करता है गुरु साहिबां ने, और इत्थे आत्मा रूपी इस्तरी है वो परमात्मा के वियोग दे विच तड़प रही है, और हर महीने के संदर्भ च रुत के हिसाब नाल वो परमात्मा नाल जुड़न दी उपराला कर रही है। तो फिर वो मैनूं कहंदा कि 12 माह दे विच की स्ट्रक्चर की है पई जांदी की है। तो मैं कहा जी, मैं जो जवाब दिता मैं वो दस रहा, मैं एवं नहीं कि उस जवाब को दोबारा सही करके दस रहा। मैं क्या जी, 17 पदे है, पहले 4 पदे है जो भूमिका के रूप है, 12 पदे है जो वो चेत तो शुरू होंगे है और फिर पूरा साल चेत विसाख एवं चलते हैं, और अखीर दे विच महत्व है। फिर उन्हें मैं क्या होर दसो भाई 12 माह के बारे। मैं फिर दोबारा क्या कि 12 माह है जो वो एक आत्मा रूपी इस्तरी हर महीने परमात्मा का वियोग चलते हुए उस परमात्मा की याद दे विच बताउंदी है, आपां नूं बताउणा चाहता है, आपां नूं हर महीना ही बिताना चाहिए है, और परमात्मा के दर्शन की तांग और परमात्मा पाना। हुण किसी की उसने आर क्वेश्चन इत्थे ही बंद करता, अगला क्वेश्चन छेड़ लिया कि कोई 5 कवि दसो समकाली इस समय दे। हुण मैं जो जवाब देने का मेरा तरीका सी इस बार बहुत स्लो सी पई। मैं क्या सुरजीत पात्र, पाल कौर, गुरतेज कुहारवाला। वो कहते तुसीं धीरे बहुत बोल रहे हो, स्पीड नहीं बोलो, इन्नी धीरे क्यों। तो मैं एक फिर भी मैं उन्हां दा बई थोड़ा ध्यान जरूर रखा। मैं कहा हाँ जी सर जी, परंतु मैं सहजता ते सरलता रखी, क्योंकि मैनूं पता सी जे किते मैं जल्दबाजी च ऐजा किसी कवि का नाम मेरे मुख चों निकल गया जिंदे बारे मैनूं पता नहीं, तो दिक्कत हो सकती है। फिर मैं क्या त्रिलोचन लोची, डॉक्टर वनीता, इन्हां बारे मैं काफी पढ़िया होया सीगा, और अपने 12वीं की किताबां के अंदर है, तो मैनूं पता सी जे कुछ पूछणगे तो मैं दस दूंगा। तो फिर वो कहंदा ठीक है। फिर उसने मैडम नूं कहा, मैडम जी तुसीं सवाल पूछो। मैडम ने जिहड़ा पहला सवाल किया सीगा वो मेरे नाल आ कीता सी कि सिख धर्म अंदर परमात्मा नूं पाउण दा की रस्ता है। फिर मैं थोड़ी देर सोचने लग गया, मैं क्या सोच के जवाब दईए। फिर उसने दोबारा जपजी साहब भी कहता, थोड़ा स्टेप आगे चली जपजी साहब के अंदर। फिर मैं क्या जपजी साहब के अंदर 5 खंड है जी, उन्हां राही परमात्मा नूं पाउणा है। मैं इस तो पहला 5 खंड दसदा, उन्हें पहले ही कहता 5 खंड किहड़े ने। मैं फिर 5 खंड दसते गए, धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड, सच खंड। फिर मैं शुरू करता, क्योंकि आ जिहड़ी गुरबाणी है मेरे खून च बसी हुई है। मेरा जिहड़ा बापू है उन्हें काफी लंबे समय गुरुद्वारे सेवा की है, तो मैं जुड़िया होया सी, तो गुरबाणी मैनूं काफी याद सी, और मैं चाहता भी सी कि लगातार 20 मिनट इसी तरह रहे तो ज्यादा वधिया हो सकता है। फिर मैनूं गुरबाणी याद सी, 5 खंड याद सी। मैं सुनाते राती रुती तिथी वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती था परखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत गया, तिनके नाम मनी तनन, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पच प्रवान। इस तरीके मैं वो सारा बोलता, और फिर मैं दसता कि जिहड़ा पहला खंड है धर्म खंड, इस दे विच धर्म के कर्तव्य के बारे दस्या हुआ है। पहला बंदा धर्म के अंदर दृढ़ होता है। फिर उस तो बाद अगली पौड़ी है ज्ञान खंड वाली, वो मैं पढ़ी, पढ़ के सुनाती, मनु याद सी। और ज्ञान खंड च मैं क्या ज्ञान की गल है। फिर उस तो बाद वो कहते भाई होर गाह दसो तुसीं गल्लां सानूं।
ये तो चलो गल होगी भी तुहानू याद है। इस तो गां चलो, फिर मैं दस्या जी 5 खंड है, पहला दूजा खंड मैं दस चुकिया सी, फिर मैं तीजा खंड की गल की, कर्म खंड के अंदर कर्मां की गल की जाती है। ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। फिर मैं क्या नहीं, कर्मखंड की बाणी जोर है। फिर वो पैरा सराता पे और उनकी व्याख्या करती और दसिया, मैं कहता इत्थे आत्म बल की गल की जाती, आत्म बल तो बंदे नूं मजबूत होना है और जो मजबूत हो जाएगा फिर वो अगले पड़ाव पड़ा है जेडे पार करूंगा, फिर शर्म खंड वाला और फिर सचखंड चो परमात्मा को पा लेगा। क्योंकि इस दे उत्ते काफी देर मैं सुनाया, उन्हें बाणी सुनी भी, और जो सुनाने का तरीका सी मेरा मेरा लंबा जीवन अनुभव सीगा, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਖੰਡ ਦੱਸੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਨੁਭਵ? ਚੋਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। और मन सोचा, मैं पोज लिता कम से कम 30 सेकंड का, फिर मैं क्या व्यवहारिक अनुभव है और आप परमात्मा नाल किसी प्रकार का व्यवहारिक अनुभव नहीं है। ते फिर मैं उत्थे जिहड़ी पहला पड़ा सी दूजा पड़ा सी उहदे बारे गल कीती। उस तो बाद मैं क्या जी इस तो गां है जिहड़ा उसका मैनूं व्यवहारिक अनुभव नहीं है, मैं क्षमा दा जाचक। हुण उहनूं एवें थोड़ा विश्वास हो गया भाई ठीक है, एवं मैं गप मार देना अपनी तरफों, मैं अपनू ये वो, तो दिक्कत हो जाती। मैं इवें नहीं किया। फिर उन्होंने जो सैड वाला बंदा सीगा उसने मेरे ते प्रेशर बनाया। उस तो पहला भी जो मैं थोड़ा धीरे बोल रहा था, जल्दी बोलो, और बाद च पता लग कि जो जल्दी बोल रहा था उन्होंने कहना धीरे बोलो, तुम इन्नी जल्दी क्यों कर रहे हो। एक प्रकार की उनकी थोड़ी अपने हिसाब से पॉलिसी होगी कि थोड़ा दबाव बनाइए। परंतु मैं जो मेरे पहले 3-4 क्वेश्चन बढ़िया चले गए तो मेरे मन च पूरा हौसला सीगा। मैं क्या मना, तेरा पेपर है वो सॉलिड हो जाता है, नंबर तेरे ज्यादा है, तेन डरन की लोड़ नहीं है, वधिया तरीके सहजता नाल तू क्वेश्चन के उत्तर दे। मन नूं अपने आप नूं मैं पक्का किया और मैं उनके दबाव हेठां नहीं आया। फिर उसने वो जिहड़ी मैडम सी उन्हें फिर मैनूं अगला सवाल किया, जफरनामे तो संबंधित जफरनामे बारे दसो। उस तो पहला हाँ उन्हें मेरे तो सवाल किया गुरु तेग बहादुर जी बाणी दे विच उपरांता दे बारे दसो। तो मैं इस विच की सी, मैनूं गुरु तेग बहादुर जी दे 9वें महल्ले के सलोक सी जिहड़े वो याद सी। मैं एक सलोक सुनाया और दसिया कि जिहड़ी गुरु तेग बहादुर जी उपरांता है वो निराशता नहीं है, वो सृजनशीलता नाल संबंधित है, वैराग नाल संबंधित है और उस राही परमात्मा नूं पाउण दी गल है। जिहड़ा वो साइड वाला बंदा सी उन्हें फिर कहा बई ये गल्लां तां सारिआं नूं पता है, कोई खास गल तुहानूं पता होना चाहिए क्योंकि तुहाडा ये फील्ड है। हुण तेरी उपरांता दी वो गल जिस राही आपां नूं कोई सेध मिली होवे वो दसो। ते मैं इसका पूरा सही उत्तर नहीं दे सकिया। मैं जो उत्तर दिता सीगा वो इस प्रकार सीगा कि गुरु साहब की बाणी वैरागमी है, वो मन दे विच शांति लैके आती है और आपां नूं सृजनात्मक ढंग नाल उस परमात्मा नाल जोड़ती है। क्योंकि मैं दूजा अटैम्प्ट लिया सीगा उसी बारे घुमा फिरा के वही क्वेश्चन सीगा ते मैडम ने कहा चलो ठीक है। वो दूजा बंदा सी वो
संतोख है उन्हें कोई खुशी जाहिर नहीं की। हुण अगला जिहड़ा क्वेश्चन सीगा उस मैडम ने जफरनामे बारे पूछा भी जफरनामे बारे दसो। मैं दसता भी जफरनामा है जो गुरु गोबिंद सिंह ने लिखिया और धर्म सिंह ते दया सिंह दी राही औरंगजेब नूं पहुंचाया गया। इस विच गुरु साहब ने खालसा की साधना, अपने युद्धां जित्तां दा वर्णन ते किस तरीके नाल चमकौर दी गढ़ी, आनंदपुर साहब दा युद्ध, उस तो बाद चमकौर दी गढ़ी दे विच पुत्रां दी शहादत दे बारे इंद विच है। दसण दा सिस्टम मेरा एवें सी जिवें मैं हुण बोल रहा, मैं हुण फटाफट बोल देवां वो नहीं, मैं जिस तरीके नाल बोल रहा उसी तरीके नाल दस्सिया सी और जो दस्सिया उही तुहानूं दस रहा। फिर उस तो बाद पुत्रां दी शहादत बारे और ये दस्सिया बई तुसीं जो है चंगी नहीं की। इत्थों मैं कहता है मुगलों की अधोगति का समय सीगा, कहते वालों जा रही सी, मुगल कमजोर पै रहे सी और गुरु साहबा ने उन्होंने सावधान किया, सचेत किया और उन्हें जिहड़े भी कुकर्म किए, गलत वतीरा सी जिहड़ा उस बारे दसिया और कहा कि तेरा ये अंत है वो नजदीक है। फिर वो जी मैडम सी उन्हें विचों पॉइंट पकड़ लिया और वो कहती मेरे तो क्वेश्चन करने की बजाय उन्होंने खुद ही जवाब दिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी तो मुगलों के खिलाफ नहीं सी। और जो दूजा बंदा सी फिर कहते तुसी कह रहे हो मुगलों के खिलाफ सी। मैं कहा नहीं जी ऐसी कोई गल नहीं है, भाई गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना के अंदर भी मुगल भर्ती सी, वो औरंगजेब के खिलाफ सन, वो झूठ के खिलाफ सी, पाप के खिलाफ सी, सच्चाई के नाल सी। उन्हां विच ये जात धर्म तो उत्ते उठे हुए सन। इस तरीके नाल मैं दोबारा जिहड़ी बाजी सी वो संभाली, परंतु फिर उन्होंने कहा खुद ही दसिया बई एवें मुगलों के खिलाफ नहीं सी, ये सी। मैं भी विच हामी भरी और अपनी जिहड़ी गल है वो कह दी। हुण एक गल जिहड़ी मैं छड्डी, उन्हां विचों फिर उन्होंने क्वेश्चन किए। फिर पहला तो उन्हें कहा भाई जफरनामा है जिहड़ा उस तो तुहानूं की सेध मिलती है। मैं कहा जफरनामे दे विच गुरु साहिबां ने अपने जिहड़े पिछले समय जो भी हंडाया वो लिखिया और आपां नूं ये सेध मिलती है कि आपां नूं पाप के खिलाफ, झूठ के खिलाफ खड़ा रहना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। बुराई जिन्नी मर्जी तकड़ी होवे, डरन की बजाय संघर्ष का रास्ता है वो चुनना चाहिए। ये मेरा जवाब सी। और फिर उस तो बाद वो जो साइड वाला विशेषज्ञ सी और उसने क्या तुम जफरनामा सुना सकते। मैं पूरा एकदम तैयार सी जफरनामा सुनाने लई। मनु जफरनामा याद नहीं सी, परंतु मैं सोच रखा सीगा भाई अगर कोई भी गुरबाणी दे विचों कोई भी चीज अगले कहते मैं सुनाई पाऊं कहणगे तुसीं यार सुना दो, तो वो चाहता सी भाई तुसीं इन्नी गुरबाणी तुहानूं याद है तो जफरनामा भी सुनाओ। दे मन च आए सीगा वो कहंदा जफरनामा सुना सकते हो। तो मैं पोज ले लिया सी और मैं सोच रखा सी जे कोई किसी भी बाणी बारे पूछा जे आपां नूं याद ना हो भी तो आपां उहदी व्याख्या करांगे। तो मैं पोजीशन ले ली सी, चेहरे ते मेरे मुस्कुराहट सी क्योंकि मैनूं लग रहा सी कि बहुत चंगा हो गया। ते मैं उनकी व्याख्या करनी सी दोबारा क्योंकि मेरे को कोई इलाज नहीं सी। परंतु इन्हें आरपीएससी मैंबर ने उन्होंने तरफ देखा और उन्होंने सोचा भी ये तो फारसी च भी देखो थोड़ा औखा भी है,
तो उन्हें क्वेश्चन विड्रॉल कर लिया, कहता चलो छोड़ो पर और बनता भी सी बई, क्योंकि इसकी तो मैं थोड़ी व्याख्या करनी चाहिए, रुकदा नहीं सी कहना से सुनाओ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰਪੀਐਸਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਰਪੀਐਸਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਕ ਬੰਨੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਾਂਗੜ ਕਾਂਗੜ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗੜ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੀਰੇ ਜਿਹੇ ਮਾਸਕ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਰੱਬਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਅਚਨਚੇਤ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰੰਤੂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਸੀ ਥੋੜੇ ਕਵੀ ਵਾਲੇ ਲੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਓਰੀਜਨਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਗਭਗ 18 ਮਿੰਟ ਚੱਲਿਆ ਬਈ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੱਦੇ। 4 ਜਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਣਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ 2 ਜਣੇ ਸੱਦੇ ਗਏ। 6 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 6 ਦੇ 6 ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਥੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 18 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ 22 ਮਿੰਟ ਆਹੀ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 2-3 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ 15 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ, ਨੰਬਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਤੋਂ 17 ਜਾਂ 8 ਤੋਂ 18 ਵਾਲਾ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਰਿਟਨ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
एक जी गल है आपको ध्यान देने योग है, मैं भी लगातार इसके उत्ते प्रैक्टिस करता रहा। देखो इंटरव्यू की जी खासियत होती है वो एक होती है कि विलक्षण पेशकारी, तो पेशकारी है ना वो विलक्षण होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा नॉलेज है वो चेक हो चुके हैं। इसी कारण तुम इंटरव्यू च उन्होंने सामने बैठे हो, नॉलेज थोड़ा चेक है, हम थोड़ी पेशकारी की वारी है, थोड़ी पेशकारी कितना है। और शायद उन्होंने मेरी बीबी दाढ़ी चिट्टी दाढ़ी वेख के मेरे तो क्लास भी नहीं लगाई, और जो क्लास लगाते तब मेरा स्कोर इस तो भी वधिया जाता, क्योंकि गुरबाणी के अगर मैं कोई भी क्लास लगाता तो मैं दिक्कत नहीं सी, क्योंकि मैं पढ़ांदा है जो पूरा गा के इंक्लूड होके सारे बच्चों के नाल एक सत्संग वाला और एक जी उठता है माहौल क्लास का। पर उन्होंने जो देखा भी इन्ना 15 साल का अनुभव है पढ़ाने का, तो उन्होंने मैंने उठाया नहीं, और साढ़े 6 बंद जो सिर्फ एक बंदे ही उन्होंने क्लास लवाई सी, बाकी किसी तो क्लास नहीं लवाई, और सारे ही बंदे 40 के नेड़ तेड़ से। और एक जो मुंडा मेरे नाल सिलेक्शन होया उनकी उम्र चाहे घट सी भाई 28 साल का होगा। हुण जिहड़ी आपां गल करिए कि खास गल्लां यह है सरलता, सहजता, स्पष्टता, बिल्कुल स्पष्ट। जो चीज तुहानूं आंदी है उस लिए कहना हाँ, जिहड़ी नहीं आंदी ना, और जिस तुसीं कन्फ्यूज हो तो तुसीं कह सकते हो कि मैं भुल गया। पर एक चीज ध्यान रखनी है, झूठ नहीं बोलना। जे तुसीं एवें कहता तुहानूं उस बारे कोई अंदाजा नहीं, और तुसीं एवें कहता कि मैं पढ़िया तो सी पर मैनूं याद नहीं, उन्होंने अगले ने हिंट दे देनी है, और जैसे ही उन्होंने हिंट दी कहेंगे हुण दसो। हुण जे तो तुहानूं भुल्ले होगे तो याद आ जाऊगा, और जे नहीं भुल्ले होंगे तो फिर पी जाओ, फिर अगे फिर हिंट देंगे, यानी कि फिर आपको चिट्ठा कर देंगे। तो इस कारण जे भुल रहे हो तो ही एवें कहना भी मैं मैनूं याद सी पर हुण ध्यान च नहीं आ रहा, ताकि हिंट देण तुहानूं याद आ जाए। और जो किसी चीज बारे नहीं पता, नहीं जी मैं क्षमा का जाचक हाँ, हाथ जोड़न की लोड़ नहीं, मैं क्षमा का जाचक हाँ, मैनूं इहदा उत्तर नहीं पता। अगले आप ही नेक्स्ट क्वेश्चन दस देंगे। हुण मैं सोच के गया सी, अगर एक दो क्वेश्चन अगर मैनूं ना भी आए तो भी मैं इदा कहूंगा भाई मैं क्षमा का जाचक हाँ। मैनूं इवें लगता है कि अगर गुरमत काव्य के पूछा जाए तो मैं जवाब दे सकता है, ताकि गुरमत काव्य तो पूछा। ऐसा सीन आया ही नहीं भाई, अगर आंदा 2-3 क्वेश्चन का मैं जवाब ना देता तो मैं पॉलिसी बना के गया सी करो, मैं इस तरीके कहूंगा ताकि गुरमत अपनी फील्ड के उन्होंने किसी तरीके लियावा, और उत्थे मैनूं किसी चीज की परवाह ना हो भाई अपने फील्ड। और चेहरे उत्ते मुस्कुराहट रखो भाई, और ऐसा ही तुहानूं की करो कि इंटरव्यू लिए आपां नूं फैक्चुअल नहीं होंदा, इंटरव्यू होंदा है विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक ते व्यवहारात्मक। फैक्ट वही पुछदे जिहड़ा तुहाडे मूंह चों निकल जाए। जै मैं जफरनामे बारे दस्सिया तो उन्होंने था पूछ ली, अगले सन भी पूछ सकते सी। फैक्ट इन्ने मायने नहीं रखते, ना ही मेरे तो जीके बारे कुछ पूछा गया, ना ही किसी होर तो जीके बारे कुछ पूछा गया। सारे तो सब्जैक्ट बारे उन्होंने जिहड़ी पसंदीदा पकड़ सी उस ते ही इंटरव्यू रहा सी। इंटरव्यू की तैयारी ਲਈ देखो सारा सिलेबस है एक बार कवर तो तुहानूं करना पवेगा, पर एक बार जो नजरिया है वो बदलना पवेगा, क्योंकि पिछली बार तो आप फैक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देंदे सीगे, क्योंकि फैक्ट आने होंगे पेपर च। और परंतु इंटरव्यू के अंदर हर चीज नूं जो भी तुसीं रिवीजन दे रहे हो, विश्लेषणात्मक ढंग नाल उहदी तैयारी करनी है, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक ते व्यवहारात्मक, इस तरीके नाल तैयारी रखनी है। और इस तरीके नाल मैं तैयारी कर रहा सी, मैनूं पता सी फैक्ट के बारे इंटरव्यू च नहीं पूछा जाता, और आप मूंह चो नहीं कटांगे कि अगला फैक्ट है बन जाए कि आप फस जी। हुण की है कि तुसीं मेरी जिहड़ी राय सी, मैं जिहड़ी तैयारी की लगातार मैं तैयारी करता रहा, क्योंकि मैनूं पता सी बहुत वड्डी अपॉर्चुनिटी है। राजस्थान के इतिहास के अंदर वो पहला काज लैक्चर होगा
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। और पहली बार ही राजस्थान ਦੇ ਵਿੱਚ पहली बार ਇਹ वैकेंसी आई सी। मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਸੀ कि भाई ये मान है वो हासिल करना है, राजस्थान का पहला कॉलेज लैक्चरर बनना है। उस लिए उन्नी ही बड़ी तैयारी है जो की गई। हुण इंटरव्यू की गल करिए, अगर उस बारे भी दसना है तो मैं वीडियो बना दूंगा भाई, क्योंकि लंबा जीवन अनुभव मेरा रहा है। 5 कंपटीशन में तोड़े है और अखीरला ये जी मेरी परफॉर्मेंस ही मैं समझदा है कि मेरे लिए बड़ी गल है। और इंटरव्यू की तैयारी की गल करिए तो इन्ना ज्यादा इंटरव्यू पढ़ने की लोड़ नहीं होती, परंतु फिर भी आप एक बार इन्ना पढ़ लो कि पूरे कोर्स की अपनी रिवीजन लग जाए एक बार 30 दिनों के अंदर भाई, क्योंकि 30 दिन तो बाहर चला गया सिस्टम तो फिर थोड़ा औखा हो जाता है। 30 दिनों के अंदर तुम रिवीजन कर लो और लास्ट वाले जो 10 दिन है और 30 दिन रिवीजन करनी है तो एवं करनी है विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, व्यवहारात्मक और विलक्षण पेशकारी। इन 4 चीजों शामिल करते हुए तैयारी करनी है। और आखिरी जो 10 दिन है और सिर्फ विलक्षण पेशकारी देना। भावें तुसी शीशे सामने बह जाओ और बह के अपने जो चेहरे के एक्सप्रेशन है उन्होंने तैयारी करो। और मैं 8-10 दिन लगातार इसी चीज की तैयारी की सी, विलक्षण पेशकारी की। और नाले बार बार एक कोशिश करता सीगा कि इतों क्वेश्चन आ सकता है, इतों क्वेश्चन आ सकता है। गुरमत काल के उत्ते मैं लास्ट वाले 3 दिन दिते सी भाई, क्योंकि मैं क्या किसी तरीके में उन्होंने इस फील्ड में ले आवा और मैं उसको कामयाबी भी हासिल की। और फिर इतने आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे 2-3 क्वेश्चन सी जेडे सीधे फस गए सी, जिवें 5 खंड वाले मैं चंगी तरह याद करके गया सी। मैं क्या अगला खंड भी अगर पूछ लैण तां मैनूं पता होवे भी कित्थों शुरू होंदा है ते याद सी तो उसनूं किवें सुनाना है सहज तरीके नाल, किवें मूंह दे विचों जो भी चीज निकले वो अपने लिए आत्मघाती ना हो जाए। चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है, किस समय गंभीर होना है और कदों मुस्कुराहट रखनी है। गंभीरता वाला कोई क्वेश्चन आता है तो गंभीर होना है, अगर गंभीरता वाला क्वेश्चन नहीं है तो फिर चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी हर प्रश्न के जवाब दे विच। और ये जेडे मेरी वीडियो देखते उन्होंने पता ही है कि जो मैं पढ़ाना है तो चेहरे उत्ते मुस्कुराहट रहिंदी है। और जरूरी भी मास्टर जो पढ़ावे तो लप लप लाली होंदे चेहरे ते और बच्चों के चेहरे ते भी आनी चाहिए है, फिर ही पढ़ाने के नज़ारे है। तो इस तरीके लास्ट जेडे 4-5 दिन से सिर्फ और सिर्फ विलक्षण पेशकारी थे, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, व्यवहारात्मक अध्ययन। क्योंकि जो इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो विश्लेषण तो शुरू होगा। वो कोई भी तुहानू पूछण, कोई भी सब्जेक्ट है विश्लेषण तो शुरू करेंगे। तो बंदे ने विश्लेषण कर लिया और विश्लेषण तो बाद वो तुलनात्मक या व्यवहारात्मक की तरफ जा सकते। जब मेरे तो फिर ही तुलनात्मक पूछा सीगा तो विश्लेषणात्मक फिर उनकी तुलना कराएंगे किसी दूसरी चीज नाल, भाई ये कर सकता है कि नहीं। और फिर उस तो बाद भाई ये सारिया सुनिया सुनाइया गल्लां ही है कि इस बंदे ने इहनूं व्यवहार विच भी उतारिया है। जो भी चीज तुसीं करके जाओ तो यह ध्यान रखो कि वो व्यवहारिक लगनी चाहिए। तुसीं बच्चों उत्ते किवें इंप्लीमेंट करोगे, ये जो है खास गल्लां ने भाई। अखीर दे विच मैं अगर पंच लाइन कहां तो आ होगी सरलता, स्पष्टता, सहजता, चेहरे ते मुस्कुराहट। हाँ आंदा है तो हाँ, नहीं तो ना। और जो याद नहीं आ रहा तो उत्ते तुसीं कह सकते ताकि हिंट देण तुहानूं याद आ जाए। विलक्षण पेशकारी, विलक्षण पेशकारी, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, व्यवहारात्मक ज्ञान जरूरी है भाई। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।